بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمارا وقت قبول فرمائے. جی نئے سبق کا آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بالسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. یوم نقول لجہنم اس دن نقول ہم کہیں گے لجہنم جہنم سے حلم تلاتی کیا تو بھر گئی ہے او تق و تقول اور وہ کہے گی حل من مزید کیا اور بھی کچھ ہے وازلفت الجنت اور قریب لائے جائے گی الجنت للمتقین متقین کے لیے غیر بعید اور دور نہیں ہوگی ہے کچھ دور نہیں ہوگی. ہذا ما توعدون یہ ہے وہ توعدون جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا لکل ہر اس کے لیے اواب حفیظ اواب یعنی خوب رجوع کرنے والا اور خوب حفاظت کرنے والا اس کے لیے جنت. من خشی الرحمن بالغیب جو ڈر گیا جو ڈرا رحمان سے بالغیب غیب میں یعنی کہ بغیر بن دیکھے وجاء بقلب منیب اور وہ آیا اور جو لایا قلب منیب یعنی رجوع کرنے والے دل کے ساتھ آیا. ادخلوها بسلام کہا جائے گا داخل ہو جاؤ اس میں سلامتی کے ساتھ. ذالک یوم الخلود یہ ہے دن خلود ہمیشہ رہنے والا ہمیشہ رہنے کا دن ہے. لہم ما یشاؤون فیہا ان کے لیے ہوگا اس میں ما یشاء جو وہ چاہیں گے فیہا اس میں ولدینا مزید اور ہمارے پاس مزید اور زیادہ. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ اور کتنی ہی بستیاں ان سے پہلے ہم نے ہلاک کر دیں ہم اشد منہم جو ان سے زیادہ تھیں طاقت بطشن پکڑ میں یا طاقت میں زیادہ تھا. فنقبوا فی البلاد وہ شہروں میں خوب چلے پھرے. حل من محیص کیا پھر کوئی ہے چھپنے کی جگہ یا کوئی بھاگنے کی کوئی جگہ ہے اس کے لیے اب ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. ان فی ذلک لذکرہ ان فی اس میں بے شک اس میں لذکرہ یقیناً نصیحت ہے لمن کانا اس کے لیے لکانا لہو جس کے لیے دل جو دل رکھتا ہے کچھ دل رکھتا ہے غور و فکر کرنے والا دل ہو او القى السمع وہ یہ کان لگایا متوجہ ہو کر جس نے سنا وہ ہوا شہید اور اس حال میں کہ وہ حاضر ہو دل و دماغ کے ساتھ حاضر ہو اس کے لیے اس میں ذکر ہے. تین کام کرے تو پھر اس کے لیے اس میں نصیحت ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن کے بارے میں ذکر فرما رہے ہیں. وہ دن آئے گا یعنی جو قیامت کا دن ہوگا
उस दिन ये सब, उस दिन जो वाक़ होगा वो अल्लाह तबारक व ताला कह रहे हैं कि हम जहन्नुम से कह रहे हैं, यौम नक़ूलु जहन्नम, हम जहन्नुम से कह रहे हैं, हल आलिम तलात, क्या तू भर गई है। इसके दो मतलब हैं कि जो कोई हल में मजीद क्या क्या वो कहेगी कि क्या और भी कुछ है। इसके दो मतलब हो सकते हैं कि मेरे बाप और जहन्नुम का कहना ये कि जैसे कि मेरे अंदर तो मजीद आदमी की गुंजाइश नहीं है, मैं भर गई, या दूसरे माने ये हैं कि और कि जितने मुजरिम हैं उनको सबको ले आइए। मतलब पहला मतलब कि तस्वुर में ये सामने आता है कि मुजरिमों को जहन्नुम में इस तरह ठोंस ठोंस कर भर दिया गया कि उसमें कोई गुंजाइश बाकी रही ही नहीं। कि जब जब उससे पूछा गया तो उसने कहा कि घबरा गई कि अभी और आदमी आने बाकी है। दूसरा मतलब लिया जाए तो ये तस्वुर जहन में पैदा होता है कि जहन्नुम का गैज़ गज़ब इस वक्त मुजरिमों के लिए इस तरह भड़का होगा कि वो हम हल मिन मजीद का मुतालबा करेगी। और सबसे अच्छी इसकी तफसीर वो है जो सैयदना अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से की है। आपने फरमाया कि जब जहन्नुम में लोग डाले जाएंगे और वो यही कहते रहे कि क्या कुछ और भी है हल में मजीद, यहाँ तक कि अल्लाह ताला उसमें अपना कदम रख देगा तो वो कह उठेगी, तो जहन्नुम पुकारेगी कत कत, यानी कि ठहर, बस बस, यानी कि ये है वो जहन्नुम में इतने वो फिर वो समझो कि भर जाएगी। तो यहाँ ये बताया गया कि कितना हौलनाक मंजर होगा कि अल्लाह तबारक रहम फरमाए जन्नत जहन्नुम के लिए कि वो पुकार पुकार, अब कुछ लोगों के ये जहन में आए कि जो जहन्नुम खुद पुकारेगी। वो पुकार जिससे हम पढ़ा है कि इंसान के जो आज़ा भी खुद बोलने लगे हैं, जैसे वो कहते हैं कि हम अल्लाह तबारक हमें कोई तो गोयाई दी जैसे और चीज़ों को दी, तो हमें इसमें क्या मसला है। पर दूसरा ये कि हर चीज़ को अल्लाह तबारक ताला ने जुबान जुबान दे रखी है, वो हम हमारी वो बात है, अलग बात हमें समझ में नहीं आती। तो ये इसमें कोई मसला नहीं है कि जन्नत खुद पुकारे कि अपने अल्लाह तबारक व तआला जिससे चाहे अपनी मखलूक से जिससे चाहे बुलवा लें, तो इसमें कोई शक होना ही नहीं चाहिए। फिर अल्लाह तबारक व तआला फिर कहते हैं कि उज़लिफ़ल जन्नत, और फिर करीब लाएगी जन्नत लिलमुत्तक़ीन गैर बईद, मुत्तक़ीन की जन्नत करीब लाई जाएगी। यानी यहाँ जैसे कुरान के असलूब है कि जहन्नम के बाद फिर अहले जन्नत का जिक्र किया जाता है, तो यहाँ बताया जाए मुत्तकी लोगों की तकरीम के लिए, इज्जत के लिए जन्नत उनके करीब लाई जाएगी ताकि उन्हें कोई चलने में तकलीफ ही ना हो। मतलब है कि जन्नत इतनी जन्नत जैसे ही कोई किसी शख्स के मुतालिक अल्लाह तबारक व तआला का ये फैसला होगा कि मुत्तकी और जन्नत का मुस्तहिक है, तो फिलफौर वो जन्नत को उसके सामने मौजूद पाएगा। यानी वहां तक पहुंचने के लिए उसको कोई मुसाफत तय नहीं करनी पड़ेगी कि वो कहीं चल के जा रहा हो या कोई सवारी पे बैठ के जा रहा हो या कोई जन्नत में जाना है जी वहां पे जन्नत है। उसका फौरन जैसे ही फैसले का वक्त और दखूल का वक्त, एक उसमें कोई वक्फा नहीं है, बल्कि इधर फैसला हुआ उधर मुत्तकी जन्नत में दाखिल हो गए। तो इसलिए यहाँ क्या है, जन्नत में पहुंचाया नहीं गया बल्कि खुद जन्नत ऐसा लगता है जन्नत ही खुद उठा के लाई गई है। तो इससे अंदाज़ा भी होता है कि आखिरत में के जो तस्वुरात हैं हमारी दुनिया के तस्वुरात से किस तरह कदर मुख्तलिफ होंगे। देर या दूरी नज़दीक के सारे मुसाफत का वहाँ कोई तस्वुर होगा नहीं। फिर अल्लाह तबारक व तआला का ये है किसके लिए, अल्लाह वसल्लम जन्नत है किसके लिए, वो जन्नतुल लिलमुत्तक़ीन गैर बैद हादा मा तुअदून लिकुल्लि अव्वाबिन हफीज। हर उस शख्स के अव्वाब भी और हफीज भी, यानी दो सिफत हों। अव्वाब का मतलब है कि उस समय ऐसा शख्स जिसे नाफरमानी और ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी का रास्ता छोड़कर, उसकी कोई नफ्स की ख्वाहिश नहीं और अपने अल्लाह तबारक व ताला की पैरवी की अतात के उसने रास्ता रास्ता अख्तियार कर लिया, तो यानी हर चीज़ को छोड़ दे जो अल्लाह को नापसंद हो और हर चीज़ को अख्तियार कर ले जो अल्लाह को पसंद हो। यानी कि वो अपनी बंदगी से ज़रा कदम भी अगर उठ गया उसका, हट गया तो घबरा जाए और फिर अल्लाह की तरफ रजू कर ले। यानी जो अल्लाह ने कह दिया उसको करना है, जिस अल्लाह तबारक ने जिस चीज़ से मना कर दिया उससे रुक जाना, ये अवाब। और अगर कोई गलती हो गई तो फिर उसकी तरफ ही लौट आए। दूसरा हफीज़, हफीज़ का मतलब है कि हिफाजत करने वाला, यानी ऐसा शख्स जो अल्लाह तबारक व तआला हदूद और उसके फ़राइज़ जो अल्लाह तबारक व तआला हम पे नाजिम किए हैं और उसकी हुर्मतों और उसके जो अल्लाह तबारक व तआला ने अमानत सुपुर्द की हैं उनकी हिफाजत करे और उनकी निगहदाश्त के जो अल्लाह की तरफ से उन पर जो आयत किए गए हैं फ़राइज़ या जो ऐद हमने मुसलमान होने की हैसियत अल्लाह तबारक व तआला से किया, जैसे मुसलमान का मतलब ये है कि अपने आप को सुपुर्द कर दिया, तो अल्लाह तबारक व तआला की ही हर बात को माना जाए और अल्लाह ही के सुपुर्द को उसको फिर हिफाजत भी करता रहे। और अपनी ये भी देखे कि अपने जो औकात हैं, अपनी मेहनतें हैं, अपनी कोशिशें जो वो कर रहा है वो उनमें से कोई ऐसा गलत काम में ज़ाया तो नहीं हो रही। यानी उसकी अगर गलत काम में ज़ाया हो रही तो फिर वो तौबा करके उसके वापस उसी पे आ जाए और उसे फिर टूटने ना ना दे जो हर वक्त
अपना जायज़ा लेकर देखता रहे कि अपने कौल और फेल में मैं अपने अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी तो नहीं कर रहा। तो ऐसा सच जवाब भी और हफीज उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला वही मुत्तकी है, उसके लिए जन्नत है जो उसके करीब कर दी जाएगी। और फिर ये वो शख्स भी है, वो मन खशियर रहमान बिलगैब व जा बिक़ल्ब मुनीब, और वो शख्स जो डरता है रहमान से बिलगैब, यानी गैब में डरता रहा, यानी अल्लाह तबारक व तआला में कहीं नजर तो नहीं आ रहे, मगर अपने आवाज़ पे या अपने तस्वर हर वक्त ये महसूस करता रहे कि और डरता रहे कि अल्लाह तबारक ताला मुझे देख रहा है। जैसे हमने पढ़ा है कि अल्लाह तबारक ताला मतलब शहर से भी करीब है। जब इंसान को तसव्वुर हो कि हाँ मैं मुझ पर मेरी निगरानी हो रही है, मेरी फिल्म बन रही है और मुझे हर वक्त देखा जा रहा है, और मुझे हमारे जैसे काम भी कहीं भी हो, जैसे इम्तहान भी दे रहे होते हैं वहाँ निगरानी हो रही, तो फिर वो बंदा अगर इन्विजिलेटर सर पे खड़ा तो कोई भी नकल भी नहीं करेगा और बड़े ध्यान से सब करेगा। तो यहाँ भी यही कल ये जब इंसान के जहन में ये चीज़ है कि अल्लाह तबारक व ताला मुझे देख रहा है, और अनदेखे रहमान का खौफ, यानी अल्लाह तबारक व ताला को वो नहीं देख रहा है, अल्लाह तबारक व ताला का तस्वुर ये है कि उसको अल्लाह तबारक व ताला उसे देख रहे हैं। फिर ये कि यहाँ ये बताया गया कि ये यानी कि ये क्या महसूस ना होने और नजर ना होने वो अल्लाह से डरता है। और दूसरी सिफत ये है कि वो अल्लाह तबारक व ताला की ये सिफत जो यहाँ रहमान का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, रहमान इसीलिए इस्तेमाल है कि उसको ये पता है कि मेरा रब रहमान है, वो रहमान रहम करने वाला है, उसके बावजूद वो अल्लाह से डरता है। यानी रहमान की सिफत मालूम होने के बावजूद वो उससे डरता है, वो अपने कोई गुनाहों पे जरी नहीं हो जाता, बहादुर नहीं बन जाता। तो ये जो दो खूबियां हैं जो अल्लाह तबारक व तआला है उसकी कदर को उसके सामने मुस्तहिक बना देते हैं कि वो उसकी कदर होनी चाहिए। तो यहाँ अल्लाह तबारक व तआला मतलब है कि एक तो ये होता है कि जैसे खौफ खौफ तो ऐसा होता है किसी चीज़ से, जैसे डरने का, जैसे हमें कोई बड़ी चीज़ से डर हो, या किसी पहलवान से कोई किसी खौफ, या शेर से हमें डर लगता हो, सांप से, एक तो ये डर होता है। एक होती है खशियत। खशियत तो होती है जैसे किसी की चीज़ का, किसी की अजमत का तस्वुर से आदमी के दिल पर आ जाता है, उसकी अजमत का तस्वुर हो, या उसके बहुत ज्यादा इज्जत करता हो। जैसे बच्चा जो अपनी माँ से डरता भी है मगर फिर भी उसके करीब ही जाता है, डरेगा, डरता भी है मगर जाएगा वो माँ के करीब ही, कितना भी लड़ ले रो ले सब कुछ कर ले उसके बाद वो जाएगा उसी के पास। ये खशियत है, ये डरना अल्लाह तबारा, ऐसा डरना है कि अल्लाह तबारक व तआला के हाँ जो कुछ भी करेगा हाँ उसको पता है कि जाना है मैंने अल्लाह के, मेरे मुझे मेरे जो माफ़ करने वाली ज़ात है वो अल्लाह तबारक व तआला ही की ज़ात है। तो ये अल्लाह वो उसका होगा, उसके जहन में वो खश रहमान बिलगैब बजा बिक़ल्ब मुनीब। मुनीब का मतलब यहाँ ये है ना, यानी कि बार अल्लाह ताला रजू करने वाला, एक तरफ रुक करके उसी की तरफ पलटने के लिए। यानी जैसे होता है ना वो कुतुबनुमा, उसकी सुई एक ही तरफ जाए, आप किसी तरह घुमा लें उसको जाएगी उसी एक ही तरफ, उसका आप उल्टा कर दें सीधा कर ले जाएगा उसी तरफ। तो ऐसा शख्स जो है जिसका रुख एक अल्लाह तबारक व तआला ही की तरफ हो, ऐसा दिल जो हर तरफ से रुख फेर कर अल्लाह की तरफ मुड़ गया, यानी फिर और फिर जिंदगी भर अहवाल उसी पे गुजारे, तो ऐसा शख्स जो है ना वो दिल उसका है। यानी असली असली कदर भी उसी शख्स की जो मैं अपने जुबान से नहीं बल्कि पूरे खलूस के साथ इस सच्चे दिल से उसका होकर रह जाए, एक अल्लाह का होकर रह जाए, और तो वो ऐसा दिल है जो कल्ब मुनीब है। फिर ऐसे शख्स से कहा जाए उदखुलूहा बिसलाम, दाखिल हो जाओ सलामती के साथ। उदखुलूहा यानी कि सलामती के साथ दाखिल होने का मतलब ये है कि हर किस्म के रंज व गम से और किसी परेशानी से या आफात से महफूज है, जन्नत में दाखिल हो जाओ। और अगर उसे सिर्फ सलामी के मायने में लिया जाए तो भी मतलब ये होगा कि आप उस जन्नत में दाखिल हो जाओ जहाँ पे अल्लाह तबारक व तआला और खुद भी और मलाइका भी सलाम के जैसे है ना, सलाम कौलम सूरह यासीन में पढ़ते हैं सलाम कौलम सलाम कौलम मिर रब्बिर रहीम, सलाम वो अपने रब की तरफ से कहा जाए जो बेहद मेहरबान है। तो उसको यहाँ पे सलामती सलाम दी खुला भी सलाम। फिर लेकिन तो फिर यहाँ अल्लाह तबारक व तआला हम देखेंगे तो ये जो आयत हमने अभी पढ़ी हैं इनमें वो सिफात बता दी गई जिनकी बिना पर कोई शख्स जन्नत में जाने का मुस्तहिक होगा। वो तो होगा तो हर कोई अपने फजल से ही, मगर अल्लाह तबारक व तआला ने ये सिफात की हैं कि ये अगर सिर्फ इंसान अपने आप में पैदा कर ले तो वो जन्नत का मुस्तहिक बन सकता है। जैसे पहली बात तो तकवा है, फिर अल्लाह की तरफ रजू करना, रजू इल्लाह है, फिर अल्लाह से अपने ताल्लुक की निगहदाश्त भी करते रहना कि अल्लाह से मेरा ताल्लुक कैसा है, जहाँ कुछ किया फिर अल्लाह की तरफ ही लौट आया। फिर अल्लाह को देखे बगैर उसकी और उसके और रहमान की सिफ़त पे यकीन रखने के बावजूद उससे डरते रहना। और फिर कल्ब मुनीब लिए हुए अल्लाह क्या पहुँचाने मरते दम तक, यही है रजू करना, अल्लाह की तरफ नावे रविश पे कायम रहना, मरते दम तक इसी पे कायम रहते। फिर अल्लाह तबारक व तआला ये सिफात है जिसपे अल्लाह तबारक व तआला की जन्नत का
मुस्तहिक बन सकते हो। अल्लाह तबारक अपने फजल से इंशाअल्लाह ज़रूर दाखिल कर। हमें दुआ करें कि अल्लाह तबारक हमें भी ये सिफ़ात पैदा कर दे कि हम भी एक अल्लाह ही की तरफ से उससे हमसे उसकी तरफ खशियत भी, और उसी से उसी की तरफ हर वक्त हमारा रजू करना उसी से हो। वज़ालिक यौमुल और ये फिर हमेशा का दिन है। यानी जो चला गया जन्नत में हमेशा हमेशा वही रहेगा। ये नहीं कि वहाँ से निकाल दिया जाएगा। जो जन्नत में शायद चला गया या जन्नत में चला गया, जो अगर ऐसे कुफार है या मुशरिकीन है, तो उनके लिए भी यही होगा कि वो फिर हमेशा हमेशा के लिए वहाँ रहेंगे। क्योंकि वहाँ जाने के बाद ना कोई मौत है ना कुछ और है। तो अल्लाह तबारक व तआला ये कहा, ये वो दिन है जो हमेशा का दिन है। फिर अल्लाहुम्मा यशाऊना फी वलदैना मजिद, और फिर अल्लाह ताला ने उनके यहाँ पे जो कुछ जो वो चाहेंगे, जैसे हम पहले भी पढ़ा है, जन्नत में हर चीज़ मिलेगी जिसकी इंसान ख्वाहिश करेगा, जो उसके दिल में आएगी और वो उसके लिए हाजिर कर दी जाएगी। वलदैना मजिद, और हमारे पास और भी कुछ बहुत कुछ है। जैसे अल्लाह ताला है ना कि आप समझ, जिसका मफहूम ये है कि उस जन्नत में वो चीज़ें होंगी जो एक इंसान के दिल में भी कभी सोचा भी नहीं, उसके जहन में कभी आई भी नहीं कि ऐसी चीज़ भी हो सकती है, वो भी अल्लाह तबारक व तआला उसको वहाँ पे देंगे। और मज़ीद मज़ीद से है कि फिर अल्लाह तबारक को सबसे बढ़ के दीदार, अल्लाह तबारक व तआला का दीदार नसीब होगा। तो वो सबसे बड़ी खुशी होगी कि जन्नत वालों से जैसे अल्लाह तबारक पूछे, तुम खुश हो, कहेंगे अल्लाह तबारक है, क्यों नहीं खुश, हमें सब कुछ मिल गया, हमें और क्या चाहिए। अल्लाह तबारक को कुछ और भी चाहिए, उनका हम क्या, हमें क्या चाहिए। फिर अल्लाह तबारक बताएंगे वो ये है कि अल्लाह तबारक अपना दीदार कराएंगे, और वो सबसे बड़ा इनाम होगा जो जन्नतियों के लिए होगा। तो लमा अल्लाहुम्मा यशाऊना फी वलदैना मज़ीद। फिर अल्लाह तबारक होता है इनको काफिरों को डरा रहे मुशरिकीन मक्का को कि तुम जो ईमान ले आओ, तुम्हारा क्योंकि तुमसे पहले बहुत सी बचतें तुमसे बहुत ज़्यादा ताकतवर थीं, तुम्हारी तो कोई हैसियत ही नहीं है, तुमसे बहुत बड़ी ताकतवर कौमें थीं जिनका हम जिक्र पढ़ आ गए, कौम समूद, कौम आद, कौम फिरौन, वो जितनी कितनी ताकतवर कौमें थीं, और वो सब के सब तबाह कर दी गई। कोई कौम बची नहीं तुम्हारे सामने, सबके सामने। तो तुमसे बहुत तगड़ी थी, वो सबको खत्म कर दिया गया। और वो बदशम फना काबू फिल बिला, और वो शहरों में घूमी फिरी, और वो खूब तिजारत की शक्ल में कह लें, या इसका मतलब ये भी लोग लेते हैं कि उन्होंने दूसरी जगहों को, अपने ही जगहों पे नहीं, अपने इलाके बल्कि दूसरी जगहों पे उन्होंने फतह हासिल की, और मुल्कों मुल्कों में शहरों में वो फैल गए। तो उसके इतने वो कौमें इतनी ताकतवर थी, मगर अल्लाह तबारक कि हमने उनको भी तुमसे पहले हलाक कर दिया, तो तुम्हारी तो कोई हैसियत ही नहीं है। हाल में माहिर क्या, फिर है कोई ठिकाना, कोई भागने की जगह है? यानी अगर तुम अल्लाह से भाग के जाओगे तो कहाँ जाओगे? इस ज़मीन में तो निकल नहीं सकते। जैसे सूरह रहमान रहता था ना, क्या है कि निकल सकते तो निकल जाओ, तो यहाँ से कहाँ जाओगे? जाने की कोई जगह है नहीं। ये समझाने के लिए कोई तंबीह की जा रही है कि देख लो, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा जा रहा है, उनको भी तसल्ली है, मुसलमानों को भी, क्या वक्त है, ठीक है आज ये कर रहे हैं, मगर एक वक्त आएगा कि इनको भी नहीं कौमों की तरह हलाक कर दिया जाएगा, इनको भी या तो आप लोगों के सर नगू कर दिया जाएगा। फिर अल्लाह तबारक व तआला करे फी ज़ालिकल ज़िक्रा, ये जो नसीहत है ये उस शख्स के लिए है जो जो अपने दिल के साथ है। दिल से मुराद ये कि यानी कि वो उसका दिल ऐसा जो कुछ गौर व फिक्र करने वाला हो। गौर व फिक्र करने क्योंकि इंसान के दो ही जराए हैं जिनसे नसीहत हासिल की जाती है, या तो आदमी गौर व फिक्र से काम ले और अकल से काम ले ले, या किसी और की खैर ख्वाह उसकी बात सुनकर तवज्जो से सुन ले, उस पर अमल कर ले। तो यहाँ ये बताया जा रहा है कि उससे नसीहत वही हासिल करे जो कोई दिल रखता हो, जिसके साथ गौर व फिक्र भी करे। और अगर कोई कोई दिल से मुराद है कि वो दिल के साथ मामूली सा गौर व फिक्र भी करे, या दिल की हाजिरी के साथ इस आयत को गौर से सुन ले, तो फिर वो यकीनी बात है, तो उससे वो नसीहत हासिल करेगा। और फिर वो गौर से सुने, मतवज्जा हो, वह हुआ शहीद, और दिलो दिमाग के साथ हाजिर भी हो। यानी कि जैसे अब ये क्लास हो जाएगी, कोई गौर से दिल इस दिल के साथ आया हो कि मैंने सुनना है, गौर से सुने भी, और फिर दिल तो हाजिर भी हो, यानी कि जब काम में लगा हुआ और क्लास भी चल रही है, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस मुबारक सुनते भी हैं, मगर हमारे हम काम में लगे होते हैं कुछ और, तो ऐसा नहीं होना। अगर आपने कि कोई चीज़ नसीहत हासिल करी, तो ये तीन चीज़ें ज़रूरी हैं। आपका दिल के साथ भी हाजिर हो, अपने समात के साथ भी, यानी आप अपने ये जहन में ला के बैठ के मैंने काम करना है, अपने दिल से हाजिर हो, फिर जहन अच्छी तरह सुने उसको, और फिर और दिलो दिमाग के साथ उस जगह पे हाजिर भी हों। तो ये तीन चीज़ें होंगी किसी भी मकसद में, तो फिर वो शख्स होगा जो उस बात का नसीहत हासिल करेगा। तो अल्लाह तो हमें भी ये अल्लाह तबारक व तआला ने ये नसीहत की है कि जो काम करना, और ये है भी जिस काम पे अगर इंसान ने समझना हो, तवज्जो देनी है, तो फिर ये चीज़ें तीनों चीज़ें ज़रूरी हैं कि उसका खुद का दिल के साथ, और समाज के साथ, और खुद
जिस्म के साथ हाजिरी, ये तीनों चीज़ें होंगी तो फिर अल्लाह तबारक व तआला इंशाल्लाह हमें भी नसीहत हासिल करने की तौफीक अता फरमाएंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग।